कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा वर्क है ना, ये मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। अब इसके अलावा अगर मैंने कोई करवाया तो आप देख लेना, ठीक है। मैं इसको रख देता हूँ बेसिक PHP के थ्रू, ठीक है। उससे ये होगा कि हमारा फ्रंट लोड कम हो जाएगा। और नीचे में ग्रो कर देते हैं यहाँ से ये लोड भी कम होगा। हम डेटाबेस पे गए, ठीक है। And here we have fresh, so we are going to create database मैंने ओपन किया। index.html देखिएगा जी, मैंने सिंपल index.html बनाया, ठीक है। इसमें मैंने एक बटन बनाया इंसर्ट डाटा और एक बनाया शो यूज़र, ठीक है। इंसर्ट डाटा को सेंड डाटा.html से लिंक कर दिया। तो सेंड डाटा.html मैंने ओपन किया। यहाँ मैंने एक यूज़र फॉर्म लिया, ठीक है। और उसको मैंने कह दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम दे दिया txt यूनिट। एक पासवर्ड बनाया txt पास के नाम से, txt ईमेल ले लिया एंड जस्ट सेट अप सबमिट बटन, ठीक है जी। सादा सा फॉर्म एक मैंने ले लिया। मैं अलग अलग ही काम कर रहा हूँ, आप चाहो तो एक ही फाइल में भी बना सकते हैं। तो आई जस्ट रन माय ब्राउज़र, सो नो नीड टू डू दैट। सो आप इस ब्राउज़र में वर्किंग कर सकते हैं। Just click here, this index localhost PHP we have 3 folders databases में है, ठीक है। ये मेरा index.php लोड हुआ है। सो मैं यहाँ तो करता ही हूँ कि इसको तोड़ लेता हूँ index1 के अंदर, ठीक है। ताकि मैं यहाँ से पूरे पेजेस देख सकूँ। सो आई जस्ट गो एंड सेट HTML का एक पेज एंड data.html, username, password and email address. We need that, so just set username author, password 123, not encrypted at that time, so just set a कि मैंने आपको डेटाबेस को दिखाना है कि कौन सी चीज़ें स्टोर हुआ है, ठीक है। When I go and press insert button, what's the name of the button is? The name of the button is type is submit btn insert, that's the name। मैं इस पर btn इंसर्ट की बजाय उसी पैटर्न पे चलते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने इसको बटन सेट कर दिया, नीचे वाले को क्लियर कर दिया। अगर मैं रन करता हूँ एंड इफ आई टाइप एनी और डाटा एंड आई गो क्लियर, तो ये मेरे को क्लियर हो जाएगा। दिस टाइप अथर पासवर्ड 123 ईमेल @b.com। सो व्हेन आई गो एंड प्रेस इंसर्ट बटन, तो ये क्या होना चाहिए, नीचे डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए। सो दैट्स मीन आई शुड हैव अ डेटाबेस which stores my username, my password and email address and with the fields if we have any. So first of all I go to my server pages and set localhost and open my phpMyAdmin for inserting creating my database, right? So I just simply create a simple database and a table which stores my values. So I just go there, decrease the view. So I said databases, so I just create a simple database called db ahmed कर लेते हैं, ठीक है। HMAD and collection type don't brand collection table, so I just set this db ahmed, so click on this, create a table, just go to structure, create table gbl, so it's gbl and set this employee employees is based on how many fields we have, 1 2 3. So I just said I need 3 columns and press go. The name of first one is is to stick it name, password and email. So I say e underscore name, e underscore
key password. So I should have another one. Add column में कहता हूँ table name this, add one column go, set go, set this one is key underscore name, key underscore pass, and eid. That's for storing primary key, right? So it's integer, length is 5, collection attribute, I'm making a primary key and also set auto incremented. Email, it should go and select voucher, size of the field is 20, I don't need to set anything. Password, I'll set voucher of 15, email address voucher of 25, right? जी If any description we need to, so we should enter it here. So I just go save. So here we have a table, so just check it out that we have a table select right from TP and imply, right? जी I just go back. When I press this button of btn submit, what's going on? I go and jump on insert.php. So I just go to insert.php. That's a very important portion. So btn sub. So let's see it on the screen. ये कोड है जी जो आपको असल में मुझे आज समझाना है. I tried जी, ठीक है, होप कि आप इसको बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे. बैठना सर मैंने कहा जैसे ही मेरा फॉर्म पोस्ट के मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट भेजता है, मैं पोस्ट से नहीं भेजना चाहता, मैं गेट से इसलिए भेज रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ऊपर क्या कंकैट हो क्या है. तो रिक्वेस्ट से मैंने एक्सेस किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने कहा btn सबमिट बटन प्रेस हुआ तो डाटा यहाँ आएगा. मैंने ये सेट किया, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अगर बटन प्रेस होने पर मैंने बटन इस सेट नहीं बताया. देखो मैंने जब एक सिंगल फाइल में बताया था, मैंने बताया था कि इस सेट का मतलब ये होता है कि बटन दबाया गया है, बटन में कोई वैल्यू है. अगर बटन में कोई वैल्यू होगी तो फिर आपका ये बटन सेट होगा और ये PHP चलेगी. आपको याद होगा मैंने यहाँ डाई लिख के करवाया आपको इस कंपनी में करवाया है जब फॉर्म भेजा है. फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद सिंगल पेज पोस्ट गेट सिंगल पेज ही मैंने आपको कराया. नहीं सर कम बैक टू पॉइंट, वापस आते हैं. सेव करता हूँ फाइल को. अभी मैं इस पेज पे आया, मैं डाटा भेज रहा हूँ. न्यू फाइल रहने देता हूँ उसको. सेंड डाटा डॉट PHP. मैं सेंड डॉट PHP की कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ इस नाम से. ठीक है, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ. राइट क्लिक न्यू फाइल. दिस टाइम आई एम मेकिंग सिंगल फाइल. ठीक है, मैंने ओपन किया. आई जस्ट गो सेंड डाटा और इसका पूरा का पूरा यहाँ से कोड कट करके मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ बिकॉज आई नीड अ PHP फाइल. बट मैंने PHP की एक्सटेंशन के अंदर अपना HTML का पेज बना लिया. ठीक है, अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ. ये मेरा कोड आ गया. मैं यहाँ कहता हूँ मुझे insert.php को नहीं कॉल करना. मैं यहाँ जाता हूँ. इट्स रिटन इन ओल्ड स्टाइल विथ जैसे डॉक टाइप HTML. So I don't need that doc type, so that's why I just remove this. I don't need to do that, so I just go up, set PHP. So here we have a PHP code. जब बटन दबाया जाए तो क्या हो. अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया PHP.
ये मेरा PHP कोड आएगा। मैंने कहा यहाँ इको करो, इको क्या करें, इको $_सर्वर, जहाँ मेरा ये पेज पड़ा होगा। सर्वर, सर्वर किसका, डेटाबेस का? नहीं, जो इस फाइल का सर्वर होगा उसी के पास भेजना ना। मैं इसको लिखता हूँ PHP कोड होता है कि जब मैं अपने पास ही कॉल करना चाहता हूँ। So here we got errors, that's errors. Connection PHP this hello $_server, उसमें PHP self का एड्रेस दिया, सेमीकोलन लगाया, ये एरर क्यों आ रही है, अगर आपका ये कोड लिखना सही हुआ है ठीक है। ओके, कम बैक टू द पॉइंट, इसको छोड़ते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, मैंने कहा मैं इस पेज से डाटा भेज रहा हूँ, इस पेज पे मैं यहाँ आ गया। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो insert.php पे, तो मैं insert.php पे ये ऐसे गेट करता था, ऐसा ही है। $सब ये बता था कि बटन प्रेस हुआ कि नहीं, ये चीज़ ठीक है। नीचे भूल लो अभी, ये क्या करता था, ये देखता था क्या बटन प्रेस हुआ है, अगर प्रेस हुआ है तो जो भी बटन का नाम है वो सब में आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, एरर ज़रूर आएगा लेकिन यू गॉट योर रिजल्ट्स। मैंने बटन को दबाया, ऊपर यूज़र नेम में अत्थर गया, txt पास में 1 2 3 गया, और txt ईमेल में a@p.com गया, जबकि btn सबमिट में एक वैल्यू गई है, इसका मतलब बटन सेट हुआ है। यानी जब हम बटन दबाते हैं तो बटन सेट होता है, अदरवाइज सेट नहीं होता।
इन केस अगर मैं ये कोड ख़त्म कर देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ, देखो अब उसको कुछ नहीं पता चला कि PHP चली है कि नहीं चली है, कोई एरर आया कि नहीं आ रहा, ये इससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मैं कहता हूँ कि जब मैं इस पे जाता हूँ, अगर तो ये बटन में कोई वैल्यू आई है, तो एक फंक्शन होता है इस सेट का, ये क्या करता है, चेक करता है क्या इसमें कोई वैल्यू सेट हुई है। मैंने कहा अगर इसमें कोई वैल्यू सेट हुई है तो फिर मुझे ये PHP का कोड चलाना है। ये PHP का कोड क्या चलाना है, मैं कह दूंगा कि नेम मैंने एक्सेस कर लिया, पासवर्ड मैंने एक्सेस कर लिया, ईमेल मैंने एक्सेस कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे एक्सेस कर ली। अब ये वो चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बटन भी एक्सेस किया, लेकिन वो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं ऊपर चेक कर चुका हूँ कि रिक्वेस्ट में जो मेरे बटन से रिक्वेस्ट आई है वो ऑटोमेटिकली चेक हो चुकी है कि आई है। वो दूसरी बात है, अगर आप उसको देखना चाहो तो आप इस तरह से उसे एक्सेस भी कर सकते हो। अब आपने एक और बनाया था आईटी के नाम से, उसको एक्सेस नहीं किया तो वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, जिसको आपने एक्सेस नहीं किया वो नहीं आएगा। ठीक, अब मैंने किस किस को एक्सेस किया है, BTN यूज़र नेम को, वो तो मैंने जो ये बनाया था डेटाबेस के अंदर, ये वाला वो तो डेटाबेस के अंदर मैंने बनाया ना, इसमें 4 फील्ड हैं। वो पहला फील्ड तो मैंने इसलिए नहीं पास किया क्योंकि वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, वो यूज़र ने थोड़ी फिल करना है। वो तो जैसे ही मैं नया अकाउंट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में उसका एक इजाफा होता जाएगा। ठीक है, वो तो इसलिए था ना। यहाँ पर मैंने भेजे जो 3 है इन्हीं को एक्सेस करना है ना। जब मैंने ये बटन दबाता हूँ डाटा मेरे पास ऑन होता है, जो जो चीज़ें आई हैं उसमें से मैंने जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने एक्सेस कर ली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब मैंने क्या किया, मैंने ये चीज़ें एक्सेस कर ली। ठीक, अब अगर आप इसको मैसेज के तौर पे शो करना चाहो तो ये मैंने आपको सिखाया था, वेलकम टू यूज़र नेम, पासवर्ड इज दिस एंड ईमेल एड्रेस इज दिस। ठीक, अगर आप इसको इको करते हो तो ये शो भी होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा है कि मुझे इको नहीं करवाना, ये मैंने पास टाइम वर्किंग है जो मैंने यहाँ तक आपको करा दूँ। अब मैं चाहता क्या हूँ कि मैं अपने इस वर्कआउट को, जो मेरे पास नाम आया है, जो मेरे पास पासवर्ड आया है, जो मेरे पास ईमेल एड्रेस आया है, ये मैं डेटाबेस में रखना चाहता हूँ। किस जगह पर? मैं चाहता हूँ यहाँ जाए और यहाँ जाकर इंसर्ट की कमांड चलाए, यूज़र से एंट्री ले, जब मैं गो करूँ तो यहाँ पर मुझे मेरे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL एम्प्लॉय की जो क्यूरी है वहाँ डाटा मेरे पास आ जाए। अब अगर मैंने SQL चलाना तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ लिखता हूँ localhost /php myadmin। एट दैट टाइम मेरा यूज़र क्या था, मेरा यूज़र था रूट का और मेरा सर्वर था लोकलहोस्ट का। अगर मैं अपनी वेबसाइट cPanel पे काम कर रहा हूँ तो यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास वहाँ से आएंगे। मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने कनेक्शन ओपन किया, ये कोड देखना है, मैंने बनाया इसका स्निपेट आपको दे दिया है। ठीक, ये ओल्ड वे है। ओल्ड वे क्या है, मैंने एक कनेक्शन का वेरिएबल लिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है मुझे एक साथ 2 डाटाबेस को डील करना हो तो मैं दोनों के अलग-अलग कनेक्शन ओपन कर लूँगा। मुझे कुछ भी नहीं करना, MySQL_connect का फंक्शन है जो डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। वैल्यूज़ पास की, लोकलहोस्ट, रूट और पासवर्ड है नल। अगर मैं किसी डोमेन पे होता तो मैं क्या करता, ये नीचे लिखा मैंने लिख के रख दिया, मैं उस वेबसाइट का एड्रेस लिखता जो उसका FTP एड्रेस है, या जो एड्रेस, अगर आप GoDaddy के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ आप लोकलहोस्ट ही लिखोगे, यहाँ आपका यूज़र नेम जो आपका यूज़र नेम है और यहाँ आप उसका अपना पासवर्ड सेंड करोगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप अपना पासवर्ड जो है वो हिडन करके भेजना चाहते हो या जैसे भी भेजना चाहते हो, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक हो गया, ये तो हो गया मेरे पास मेरा वर्कआउट ये। अब यहाँ मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, यहाँ तक। इसके बाद मैंने क्या करना था, मैंने DB अहमद को ओपन किया, टेबल तक जाना ना। अब DB अहमद ओपन करना है तो मेरे पास DB वसीम ओपन हो रहा है, मुझे यहाँ पे DB AHMAD ओपन करना है। अगर तो DB अहमद ओपन नहीं होता, पहले तो यहाँ बात करते हैं, अगर मेरे पास लोकल होस्ट में रूट ओपन नहीं होता तो ये क्या करेगा, ये डाई कर देगा, मैसेज दे देगा और प्रोग्राम को यहीं टर्मिनेट कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं। अगर डेटाबेस नहीं मिलता तो कह देगा कुड नॉट फाइंड दिस। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, सपोज नहीं मिला डेटाबेस। डाई फंक्शन है, डाई का फंक्शन उस वक्त चलेगा अगर ये चलता है तो ठीक है, ट्रू आ गया, नहीं चलता तो ये चल जाएगा, और का ये मतलब है। यानी या तो उसको मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो मेरे पास ये वाला जो मैसेज है कुड नॉट सिलेक्ट डेटाबेस, ये प्रिंट हो जाए। यहाँ तक क्लियर हुई बात? ठीक, अब मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ गया, मैंने बैक किया, आई जस्ट सेट रिफ्रेश, मैं यहाँ वैल्यूज़ भेजता हूँ, अथर कुछ भी पासवर्ड दे दिया, ईमेल एड्रेस दिया, इट सेट कुड नॉट सिलेक्ट डेटाबेस। अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं डेटाबेस बनाऊंगा, अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एस्पेक्ट कवर करूं इस एग्जांपल में, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ रह जाए तो आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। पहली बात, मैं एक ऐसी वेब कंपनी का मालिक हूँ, मेरी वेबसाइट ऐसी कंपनी है जो आप लोगों को
डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करती है। अब अगर मैं आपको डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करता हूँ तो आप मेरे क्या हुए, यूजर्स। सो इस सूरत में मेरी साइट पर, यानी मेरी अगर डोमेन होस्टिंग वाली कंपनी है तो मेरी साइट पर आप लोग डेटाबेस बनाने कोडिंग के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, मैं एक वेब डेवलपर हूँ, आप मेरी साइट पे एज अ यूजर आए हो, आपने साइन अप का बटन दबाया, आप लॉगिन कर रहे हो, इस सूरत में आप डेटाबेस नहीं बना सकते। ठीक है, तो जिस सूरत में डेटाबेस नहीं बना सकते उस सूरत में तो बात वैसे ही क्लियर हो गई कि आपने डेटाबेस बना के देना है। ठीक है, इंसर्ट डाटा एरर आना था क्योंकि अभी मैंने वो क्यूरी ठीक नहीं लिखी हुई है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये एरर नहीं आया, यहाँ से मैं क्रॉस कर गया हूँ। अगर आप मैसेज शो करना चाहते हो तो यहाँ जाके आप लिख दो कनेक्टेड। अब देखो आप कनेक्ट हो चुके हो डेटाबेस के साथ। लेकिन वो दूसरी सूरत ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, जब आपने कहा कि जनाब अगर डेटाबेस नहीं है तो फिर क्या होगा। ठीक, उस सूरत में क्या होगा, मैंने ये कोड ऑलरेडी लिख दिया है। ये सूरत में जब मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र भी अपना डेटाबेस बना सके, फिर हम क्या करते, मैंने कहा यूज़र को कि डीबी अहमद को जाके वेरीफाई करो। यूज़र गया, उसने जाकर डीबी अहमद को वेरीफाई किया। उसने क्या क्या डीबी अहमद बना हुआ है, यानी देखो कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने वहाँ किया था। मैंने कहा इफ़ के अंदर लिखी स्टेटमेंट माई एसक्यूएल अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर डीबी, जाके चेक करो क्या डीबी अहमद बना हुआ है। अगर डीबी अहमद बना हुआ है तो फिर शो करवा दो कनेक्टेड, एल्स नहीं चलेगा। लेकिन ये फिर ये लाइन नहीं लिखनी है, ये जो मैंने ये लिखा है ये नहीं फिर लिखना आपने। ठीक है, ध्यान में रखना ना कहाँ क्या ऑन करना है क्या ऑफ करना है। ठीक, लेकिन अगर ये नहीं बना हुआ तो फिर वो क्या करेगा, एल्स पे आ जाएगा। एक क्यूरी स्टोर की, आपको याद है क्रिएट डेटाबेस विद डेटाबेस नेम। सो मैंने अहमद के नाम का एक डेटाबेस देखा और ये क्यूरी बनाई। क्यूरी क्या चलाई, मैंने कहा माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी। देखो क्यूरी चलाते कैसे हैं, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, जो भी आपकी क्यूरी है वो आपको पास करनी है। ये मैंने पास की, लेकिन ये किस कनेक्शन के अंडर चलनी चाहिए, तो ये मेरा वही कनेक्शन है जो मैंने ऊपर खोला हुआ है, यानी कौन के नाम से। ठीक हो गया। और डाई अगर तो मीन्स सपोज ये भी तो पॉसिबिलिटी है क्यूरी में कहीं गलती है। ठीक, तो वो कह दे एरर डेटाबेस नॉट क्रिएटेड, अदरवाइज कह दे डेटाबेस क्रिएटेड। अब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा ना, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो आपको फिर भी ये लाइन दोबारा चलानी है। क्यों, क्योंकि ये लाइन डेटाबेस को ओपन करती है। ये लाइन अभी ये जो क्यूरी है ये डेटाबेस बनाएगी, डेटाबेस खुला नहीं है। लेकिन ये क्योंकि इस पर एक्सेप्शन केस है तो हमने इसको ऑफ कर दिया। हमने कहा मैंने यूज़र को ऑलरेडी डेटाबेस बनाया दिया है ताकि मेरे प्लेटफॉर्म पे आके वो खेल सके। ठीक हो गया जी, यहाँ तक वर्किंग। तो मैंने कहा ये मैंने वर्कआउट जो है वो परफॉर्म कर लिया। अब ये मैं फिलहाल ऑफ करवा रहा हूँ, कनेक्शन मैंने बिल्ड कर लिया। लेकिन यहाँ देखना मैं एक लाइन आपको ना और लिख के दिखाता हूँ। cm sql I underscore connect. In that case, we have a local host, our username, root is our password, root is our username and blank is our password. So we should enter another parameter here because वो कहता है sql I underscore connect should have a string name in the host, get the default host name, username, password, and he asked me about you should enter the database name too. So what's my database name is, it's this. So I just said and pass this value like this. ठीक हो गया, यानी अगर मैं ये कहूँ, मैं कह रहा हूँ टेम्पलेट बना देता हूँ पूरा ही, कोमा जस्ट सेट डबल कोट नेम ऑफ डेटाबेस। ठीक है जी, मैंने हिंट दे दिया, आप इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, बट आई एम नॉट डूइंग दिस, आई जस्ट गो विद अ सिंपल वे। ठीक, ये आ गया, मैंने यहाँ तक क्लिक किया। अब एसक्यूएल यूज होती है, लेकिन टेम्पलेट पे बना हुआ ना, मैंने अभी चारों में इंसर्ट डिलीट अपडेट को पढ़ा दूँगा, मैं वो यूज़ करूँ फिर कहीं अड़ गया तो फिर फंस जाएगा। ठीक है, मैं एसक्यूएल का कोड भी आपको ला दूँगा, वो इसी में होगा जो मैंने लिखा ना, इसी में होगा एसक्यूएल का कोड भी लिखा हुआ। लेकिन ये टेम्पलेट हमारा यहाँ तक क्लियर हुआ। सो मुझे लग रहा है कि आई जस्ट गो देयर, यूज़ दीज टू लाइन्स। अगर डेटाबेस में कनेक्ट हुआ तो ये एरर आएगा, और अगर मेरा सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ तो ये एरर आएगा। सपोज मैंने सर्वर ऑन ही नहीं किया हुआ तो फिर ये ऊपर वाला एरर आ जाएगा, माई एसक्यूएल नॉट कनेक्टेड। ठीक है, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो देयर, मैं इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, ग्रुपिंग कर लेते हैं। सो मेक दिस कमेंट, इसको कमेंट कर लेते हैं,
ना अब मैंने क्या कर लिया है, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैंने डेटाबेस खोल लिया, यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ जी। अब मैंने टेबल को खोलना है। टेबल को खोलूँगा तो दो ऑप्शन है कि टेबल है या नहीं है। ठीक। सही है। कैसे, मैं यहाँ गया, मैंने क्यूरी चलाई क्रिएट टेबल की। कैसे चलेगी क्रिएट टेबल? क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट करो, क्रिएट टेबल जो भी उसका नाम है। मैंने प्रोडक्ट का टेबल लिया। कैसे लिखते थे? प्रोडक्ट आईडी इंटीजर ऑफ 4, प्राइमरी की पी आई आप यहाँ भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। ऑटो इंक्रीमेंट है, पी नेम जो उसका साइज़ है वो दे दिया, और प्राइस दे दी। एक प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट करें, ठीक हो गया। लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी जो है ना, अच्छा ये टेबल क्यूरी चली, ये क्यूरी रन की, क्यूरी को एग्जीक्यूट भी तो कराना है। टेबल नॉट क्रिएटेड अगर एरर आता है तो, और अगर ये क्यूरी चल जाती है तो एंटर टीबीएल प्रोडक्ट क्रिएटेड। ठीक, मैंने लेकिन ये क्यूरी नहीं चलानी क्योंकि मैंने टेबल ऑलरेडी बना लिया हुआ है। मैं जब यूज़र से लॉगिन करवाऊंगा तो मैंने टेबल ऑलरेडी बना लिया हुआ है। वो क्यूरी क्या है, देखो अब मैंने टेबल ऑलरेडी बना लिया हुआ है तो इसका मतलब है कि टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेबल को खोलना है और इसमें इंसर्ट में जाके एंट्री करनी है, यानी इंसर्ट की क्यूरी चलानी है। अगर मैं यहाँ क्यूरी चलाऊँ, मैं कहता हूँ उमर, पासवर्ड 123 एंड ईमेल a@b.com, आई गो, ये वो क्यूरी है जो मैंने चलानी है। ठीक है, लेकिन ये हार्ड कोडेड है। मैंने इसको इधर से लेना है, नेम इधर से लेना है, पासवर्ड इधर से लेना है, ईमेल ये चलाने हैं। क्यूरी का सिंटैक्स क्या होता है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, डेटाबेस के फील्ड बताऊंगा और उनकी वैल्यूज बताऊंगा। मैंने आपको कहा था मैं ये लिखता हूँ, एक पैटर्न मैंने आपको और बताया था कि ये चाहे तो आप ना दो, लेकिन फिर उसी तरतीब में आपको डाटा एंट्री करनी पड़ेगी जिस तरतीब में आपके डेटाबेस में फील्ड नेम। एक और सैम्पल देखो, अगर आपने एम्प्लॉई की क्यूरी चलानी है, इंसर्ट इनटू टीबीएल एम्प्लॉई, ई नेम, ई सैलरी, ई डेजिग्नेशन और एम्प्लॉई पिक्चर पाथ, ये भी हमने स्टोर कर लिया। उसकी वैल्यूज़ ताहर स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे भेज दी हैं, और ताहर डॉट जी पी जी थम्पिक डॉट स्लैश ताहर डॉट जे पी जी मैंने यहाँ पे भेज दिया। जस्ट गो देयर कमेंट दिस। हार्ड कोडेड अगर करूँ, अब मैं हार्ड कोडेड चलाता हूँ। देखो मैंने कहा हार्ड कोडेड क्यूरी क्या मतलब, यानी अब आपका हार्ड कोड कर लिया कि जो भी आपने क्यूरी के ऊपर से कमांड भेजेंगे वो यहाँ से आपने फिर क्यूरी में रन किया और आपकी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैंने फिलहाल इसको ऑफ कर दिया। मैं जेनेरिक डाटा देखता हूँ। जेनेरिक डाटा से क्या मुराद है कि नेम में मुझे ये वाला नाम चाहिए, यानी यू नेम वाला वेरिएबल चाहिए, पासवर्ड में पासवर्ड वाला वेरिएबल चाहिए, और ईमेल में ईमेल वाला वेरिएबल चाहिए। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट सेट इंसर्ट इनटू, अब मैं क्यूरी लिख रहा हूँ, इंसर्ट इनटू, मेरे टेबल का क्या नाम था? टीबीएल एम्प्लॉई। सो आई जस्ट सेट टीबीएल एम्प्लॉई, गुड। देन वी हैव एम्प्लॉई नेम, पासवर्ड एंड ईमेल। ठीक है, अब तीन फील्ड है, तो तीन फील्ड है तो चौथा फील्ड तो मैंने लिया ही नहीं है। मैंने कहा वैल्यूज यू नेम, मेरा यू नेम ही था। ओके, मैं यहाँ गया, किधर गया फॉर्म मेरा, यू नेम, मैं कंट्रोल यू करता हूँ। देखो टी एक्स टी यू नेम, टी एक्स टी पास और टी एक्स टी ई मेल, टी एक्स टी यू नेम, टी एक्स टी पास और टी एक्स टी ई मेल, टी एक्स टी पास। स्टूडेंट, ये मेरे डेटाबेस के नाम है। मैंने क्या नाम रखे हैं फील्ड में, एम्प्लॉई के टेबल में, एम्प्लॉई के टेबल में स्ट्रक्चर खोला। मैंने कहा ई अंडरस्कोर नेम, ई अंडरस्कोर पास और ई अंडरस्कोर ईमेल, यहाँ पे आएगा ई एम पी आएगा, ई अंडरस्कोर नेम, देन वी हैव e underscore pass, and then we have e underscore email. Just verify that p बड़ा e बड़ा e बड़ा दो सही बड़ा, नेम फैन बड़ा, ठीक है। ये आ गया वैल्यूज, यू नेम, यू पास एंड यू, ये वही है जो ऊपर से आ रही है, तो ये गलत नहीं होगी, यही है ना, ये 1 2 3, ये 1 2 3 आ गई। अब पहला क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो वैसे चल जाएगा। मैंने कहा माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, क्यूरी चलाई, कनेक्शन के अंदर और डाई इंसर्ट डाटा एरर, अगर तो क्यूरी में कोई गलती है तो कह देगा इंसर्ट डाटा एरर, सपोज इंसर्ट इनटू टीबीएल इनटू जस्ट गो रन दिस इंसर्ट डाटा एरर, ये एरर आया। ठीक है, मैंने कहा नहीं, मुझे तो इसको ऐसे ही रहने देना है, मेरी ये क्यूरी जो चलानी है। अगर क्यूरी चल जाएगी तो एरर आ जाएगा रिकॉर्ड स्टोर्ड। ठीक है, मैंने सेव किया, आई जस्ट गो बैक, आई जस्ट गो 1 पासवर्ड 1 2 3, एंटर हो गया डाटा।
बटन प्रेस किया, रिकॉर्ड स्टोर, मैंने रिफ्रेश किया था ना, ऑलरेडी कैशे में डाटा पड़ा हुआ था होगा, वो यहाँ से लोड हुआ। अब मैं जाता हूँ अपने डाटाबेस के ऊपर, मैं देखता हूँ क्या मेरा डाटा लोड हुआ है। जब मैं डाटाबेस पे गया, मैंने क्लिक किया डाटाबेस के ऊपर, उसको सेलेक्ट किया, ये वो वैल्यू है जो मैंने मैनुअल भेजी थी अभी डाटाबेस के थ्रू, ये वो वैल्यू जो मैंने पहले रिविश किया और जो मैं ट्रिगर फायर किया था, ये वो वैल्यू जो मैंने अब भेजी है। ठीक हो गया, ठीक मेरा डाटाबेस में डाटा इंसर्ट हो गया। मैंने कहा जब डाटा इंसर्ट हो जाएगा, अच्छा देख लो, आप क्यूरी अपने हिसाब से इंसर्ट भी कर सकते हो, एक साथ भी चला सकते हो, यानी आप ये पूरी की पूरी क्यूरी उठाते हो, यहाँ आप नहीं लिखना चाहते, अलग से वेरिएबल नहीं लेना चाहते, इसको उठाओ और इसमें $क्यूरी की जगह वो वैल्यू जो आप पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसे आप वहाँ पेस्ट करोगे तो वो आपके पास यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये वो वाला पैटर्न भी लिख के दिखाया हुआ है। ठीक हो गया, मैंने कहा जब आपने कनेक्शन क्लोज करना ना, अपना काम तो हो गया, मैंने कनेक्शन को क्लोज कर दिया, वही कनेक्शन सी एन जो मैंने ऊपर बनाया था। ठीक है, कनेक्शन क्लोज हुआ, इको में जाकर मैंने कह दिया हाइपर लेफ्ट इंसर्ट स्टार्ट होम पे वापस आ जाए। सही है जी, मैंने पेज वापस किया, आप देखो यहाँ पे आपके पास होम आ गया, आप इस पर क्लिक करते हैं, सो वी गॉट इंडेक्स डॉट, अब इंडेक्स डॉट नहीं है, इंडेक्स 1 हो चुका है। ठीक है, इंडेक्स 1 डॉट, ठीक है जी, मैं यहाँ आ गया, इंसर्ट डाटा हो गया। एक और डाटा इंसर्ट करके देख लेते हैं, हसन अली पासवर्ड समथिंग लाइक दिस, hasan@yahoo.com, press insert button, record store, home वापस, शो ऑन रिकॉर्ड। अब शो ऑन रिकॉर्ड क्या है, मैंने यूज़र देखने हैं। अच्छा, ये एडमिन पैनल के लिए होता है, शो ऑन रिकॉर्ड के उसको सारे यूज़र का डाटा नज़र आना होता है। अगर आप होंगे, अब आप शो ऑन रिकॉर्ड्स का नहीं होगा आपके लिए, मीन्स अगर यूज़र लॉगिन बनाया, साइन अप किया है, अब वो अगर देखना चाहे तो वो तो सिर्फ अपना डाटा देख सकता है ना, वो जब करेगा तो वो सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल देख सकेगा। वो क्या करेंगे, वो क्यूरी यही होगी लेकिन वेयर क्लॉज के साथ होगी, वेयर ई आई डी इज इक्वल टू जो भी उसकी आईडी है वो मैं पास करूँगा। लेकिन अभी मैं पहले एडमिन पैनल की बात करता हूँ, फिर मैं उसकी तरफ कहूँगा वो ऑब्वियस से बना के लाऊंगा। ठीक हो गया, मैंने क्या कहा, शो आर रिकॉर्ड। अब शो आर रिकॉर्ड जब करूँ तो क्या होना चाहिए, जैसे मैं वापस आया, मैं यहाँ से पेज वापस आ गया, कौन से इंडेक्स के ऊपर, शो आर रिकॉर्ड्स पे क्लिक करता हूँ तो शो डाटा डॉट पी एच पी पे आ जाता हूँ। अब शो डाटा डॉट पी एच पी मेरे पास कहाँ है, मैंने कहा जी शो डाटा डॉट पी एच पी, एक मिनट आप ऐसे करो, मैं पानी पकड़ लूँ, तो ये कोड ज़रा देखो आप। ठीक है, क्या आपको इसमें कोई बात ऐसी जो पूछने वाली हो, इसको ना एक दफ़ा कर लो, ऊपर से एक दफ़ा गो थ्रू करके नजर मार लो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर, रिज्यूम वापस आ गया जी। हमने क्या दिया, अहमद का मैंने रिकॉर्ड भेजा, सो आई जस्ट गो एंड रिफ्रेश, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, सो आई गॉट इट, मेरे पास ही इस तरह से जो मेरा डाटा वो आ गया। ठीक है, अब मैंने आगे वर्किंग क्या करनी है, आगे मेरी वर्किंग ये है कि मैं चाहता हूँ कि अब मैं देख सकूँ कि मैंने किया क्या है। ठीक है, यानी मैं ये चेक कर सकूँ कि मैंने कौन सी वर्किंग जो है वो परफॉर्म की है, या जो मैं इम्प्लीमेंट किया है वो कैसे है, ये मुझे रन टाइम पे यूज़र को भी तो नज़र आना चाहिए ना। लेकिन जिसको ये रन टाइम पे नज़र आएंगे ना, वो एडमिन होगा, वो यूज़र नहीं होगा, क्योंकि सारे वेबसाइट के यूज़र देखने हैं। तो मैं आया शो डाटा डॉट पी एच पी पर, यहाँ से आया, यहाँ क्लिक किया, शो डाटा डॉट पी एच पी, सो हेयर आई जंप इट ऑन शो डाटा डॉट पी एच पी, सिंपल इज दैट। this one is not show data dot php, this one is show data dot php। ठीक है जी, सो हेयर आई गो, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको कुछ बताना चाहिए ऊपर वाले पोर्शन में, तो मुझे जो चीज़ कॉपी करके लानी है वो कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा जी सबसे पहले मैंने कनेक्शन किया, माई एसक्यूएल जिसको कनेक्ट localhost root username and my password or die is this one, so I just go there, select this db ahmed or die could not select a database, so I just go with this, so what's the table, tbl employee, that's the name of my table, good fine। मैंने कहा रिकॉर्ड माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, क्यूरी से मैंने रिजल्ट लिया, ये देखना है, ये मैंने एक टेबल से काम किया है। ठीक है, टेबल से मैंने क्या किया, एम्प्लॉई आईडी, हेडिंग बनाई, नेम बनाई और दिस बनाई। मैं यहाँ से ना फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है जी, मैंने इसको सेव कर लिया, मैं आपको शो करवा के दिखाता हूँ। जैसे मैं शो और यूज़र पे आया, हेडिंग आ गई जी, आ गई। अब मुझे इन हेडिंग के नीचे, यानी नीचे क्या करना है, नीचे मुझे रो शो करवानी है, कौन से वाली, ये वाली, ऐसे ही है ना, जो मेरे यूज़र्स हैं
वो मैंने अब वहाँ पे शो करवाने हैं। कहाँ पे? यहाँ पे इसके नीचे। अब यूज़र पहली दफ़ा मैं क्या करूँगा, मैं पहले पहला यूज़र पकड़ूंगा, इसको प्रिंट कराऊंगा 4 कॉलम्स, फिर दूसरा यूज़र पकड़ूंगा, इसको प्रिंट कराऊंगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, सो ऑन। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया, मैंने अपने कोड में जाके एक कमांड होती है, आपने कहा जब आपने अरे को फैच करना होता है, यानी कहीं से डाटा उठाना है ना, और वो वेरिएबल जो है देखो कहाँ आ गया था, मैंने क्यूरी की चलाई थी, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉई, ये क्यूरी चली, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, ये क्यूरी चली और इसने सारा डाटा दे दिया था आर को। अब आर पर एक मल्टी डिमेंशन अरे बन गई, क्या मतलब, जिसमें 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और 1 से लेकर 10 तक रोज है। ठीक हो गया जी। अब मैंने क्या किया, मैंने ये इसको इस अरे को फेच करना है। अगर मैंने इस अरे को फेच करना है, देखो मैं आगे लूप नहीं लगाता, मैं यहीं जाता हूँ, मैंने कहा बाकी कमेंट कर दिया, मैं कहता हूँ आपको याद होगा प्रिंट अंडरस्कोर आर, अरे को प्रिंट करने के लिए, और अरे को प्रिंट करने के लिए ये क्यों आया, अच्छा कोई नहीं वैसे आया, ठीक है। मैंने यहाँ पास की ये वाली अरे जो मैंने अभी उठाई थी, तो देखो डाटा इसके अंदर आ गया है पूरी अरे में, मैं इसको प्रिंट करता हूँ सेव, I just go there, back, refresh, show all records, आईडी नंबर 4 जो मुझे कह रहा है सोर्स आईडी नंबर 4, क्या हुआ मसला, आपकी एक मल्टी डिमेंशन अरे है जो डायरेक्ट इसमें फीड नहीं हो सकी, वो कहता है आप अपनी इसको पहले अरे में लेके जाओ, अभी अरे में गया नहीं है। अभी पता क्या हुआ है, अभी हुआ ये है कि उसने इसको उठाया ना, तो ये एंड डिमेंशन में उसको नज़र आई है, वो कह रहा है अभी इसको रे की शक्ल में लेके जाओ, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से कट कर लेता हूँ, अभी आगे यूज़ करूँगा। मैं यहाँ गया, मैं यहाँ जाके कहता हूँ क्या, मैंने ये चीज़ लगाई, क्या चीज़ लगाई, मैंने कहा अब इस रे को फैच कर लूँ पहले, यानी पहले उसको एज अ रे की फॉर्म में मैं गेट कर लूँ, ये मैंने गेट किया, पहले रे की फॉर्म में गेट किया, और अब मैं प्रिंट करता हूँ अरे रो वाली, यानी अब क्या हुआ, जब पहली दफ़ा चलेगा ना फैच अरे होगी, तो पहला रो जो रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास आ जाएगा, देखो 0 1 उमर, नेम उमर 2, कंट्रोल यू करते हैं, देखो 0 में 1 पड़ा हुआ है, 0 एक का आईडी एम्प्लॉई आईडी 1 है, उमर इसका नाम है, 1 2 3 इसका पासवर्ड है, और ईमेल इसका एड्रेस ये है। ठीक हो गया, जी। ये इसने पहले ही रो रिटर्न की। अब अगर दूसरी रो उठानी होती तो दूसरी रो के लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा, समझ आ गई रेपिटेशन की। अब मैं पहली इसी तरह मैंने फैच करवा ली, तो मैं यहाँ गया, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से जाके इसको फिलहाल कमेंट कर दिया, इसे जो आपको दिखाने के लिए मैंने किया था। ठीक, मैंने क्या किया जी, मैंने लूप लगाया वाइल का, वाइल उस वक्त तक जब तक के माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच अरे में डाटा आता रहे। पहली दफ़ा चलेगा लूप तो 1 आ जाएगा, 2 3 4 5, जब 10वीं दफ़ा चलेगा अहमद आएगा, 11वीं दफ़ा चलेगा तो एरर आ जाएगा, जब जैसे ही इसको एरर मिलेगा ये इस लूप से बाहर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, टेबल प्रिंट करवाएगा और मैं आगे चला जाऊँगा, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी जो पहला डाटा आया है, तो मैंने क्या कहा, मैंने एक रो बनानी है, तो मैंने कहा इको TR टेबल रो, अगर आप आईडी से काम कर रहे हो तो आप आईडी के हिसाब से एडजस्ट करोगे, सॉलिटिव के हिसाब से। मैंने कहा इको करो क्या, अब अगर आपने रो का इंडेक्स उठाना है, अब यहाँ इंडेक्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो एसोसिएटिव अरे है, एसोसिएटिव अरे में क्या है कि पहली चीज़ ई आईडी से रिलेटेड है, दूसरी ई नेम से, तीसरी ई पास से, और चौथी ई नेम से, ईमेल से। तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कह दिया पहली किससे रिलेटेड है, क्या था पहला, ई अंडरस्कोर ई आई डी, पहला ई आई डी है, फिर ई अंडरस्कोर नेम है, फिर ई अंडरस्कोर पास, फिर ई अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, चारों रोज आ गई। ये जो अगली रो है ना, मैं फिलहाल इसको कमेंट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये मैं बताता हूँ, सॉरी ये PHP में है, ऐसे कमेंट नहीं होगा,
ये मैंने डबल कोट शुरू किए हुए हैं, ये डबल कोट क्लोज करने पड़ेंगे, इधर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, और यहाँ जाकर मैं ये कर देता हूँ, और यहाँ जाकर मैं ये कर देता हूँ। अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा कि इको ठीक है जी, सेव कर दिया, मैंने रिफ़्रेश किया, देखो मैं अपने पेज पे गया, मैं ज़रा यहाँ जाता हूँ, अब जैसे ही मैंने शो वाल यूज़ किया लाइन 20 की ढेर सारे एरर आ गई, कह रहा है ई आई डी उसको मिला, EID का ID बड़ा आपने लिख दिया था। बड़ा ही प्रॉब्लम है डेटाबेस में, इसका क्या नाम है, अच्छा सॉरी आईडी बड़ा कर दिया, ठीक है जी, जस्ट गो एंड रिफ्रेश, आईडी में 1 2 3 4 सारे मिल गए और 10 नंबर तक कैमरा मोड ऑपरेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये एडमिन पैनल है तो मैं किसी भी यूज़र को ब्लॉक कर सकता हूँ, रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे साथ में एक नई रो चाहिए। अगर मुझे साथ में नई रो चाहिए तो मैंने क्या किया, एक नया TD लिया, नया कॉलम बनाना है, सॉरी कॉलम चाहिए, मैंने यहाँ पे एक नया कॉलम लिया जिसके अंदर मैं कहूँगा ऑपरेशंस, उसकी हेडिंग मैंने दे दी, कोई भी हेडिंग आप दे दो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने उसकी हेडिंग्स यहाँ पे गया, ये ID था ना, मैंने यहाँ जाके कह दिया TH टेबल हेड, TH ठीक है, और यहाँ मैंने कह दिया सपोज, ठीक है। यहाँ पे आगे ये मैंने नई रो नीचे क्रिएट की, TD ले लिया, यानी ऊपर मैंने नया हेडर ले लिया, और यहाँ नीचे मैंने कहा ये, अभी फ़िलहाल हम मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको सिर्फ ये कर रहा हूँ कि यहाँ से सिर्फ इसको रनिंग के काबिल बनाता हूँ और कुछ नहीं करता, ठीक है। इसके अंदर क्या है ये मैं भी आपको बाद में बताता हूँ। आएगा मेरा आईडी क्या था जी, ई आई डी और मेरा EID ही यहाँ पर पासवर्ड, मेरे EID पे प्राइमरी की है तो मैं उसे यूज़ करूँगा जो मैंने अपनी प्रोसेसिंग करनी है। मैंने रिफ्रेश कर दिया, देखो ऊपर हेडिंग आ गई ऑपरेशंस, और उसमें दो चीज़ें मुझे मिली, एक टेक्स्ट था जिसको मैंने एडिट का नाम दिया, ये मेरा एडिट आ गया, edit.php, जिसको मैंने लिंक दिया एडिट, और delete.php जिसको मैंने लिंक दिया डिलीट, यानी जब वो डिलीट का बटन दबाएगा तो मैं किस लिंक पे जाऊंगा, delete.php पे, और जब वो एडिट का बटन दबाएगा तो मैं किस पे जाऊंगा, edit.php पे। मैंने सेव किया, मैं पेज पे गया, मैंने रिफ्रेश किया। अब मज़ेदार बात ये है कि अगर यूज़र अथर1 ये जो 4 नंबर पे है इसको डिलीट करना चाहता है तो कोई ना कोई तो ऐसी क्यूरी होगी ना, डिलीट टेबल फ्रॉम टेबल नेम वेयर ID इज इक्वल टू दिस वन, ये यूनिक है। देखो ये भी अथर1 है, अथर1 है, अगर मैं इस पे डिलीट की क्यूरी चलाता हूँ तो ये सारे अथर1 वाले डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ये बेसिकली 4 को डिलीट करना है। अब जब लूप चलता है तो पहली दफ़ा क्या होता है, पहला डाटा ID आता है, पहली दफ़ा ID में आया 1, यानी जब मैं यहाँ जाता हूँ तो पहली दफ़ा ID में 1 आता है, दूसरी दफ़ा ID में 2 आता है, तीसरी दफ़ा ID में 3 आता है। तो देखो मैंने हाइपरलिंक कैसे असाइन किया, ये बात ज़रा ध्यान से देखनी है, ये वाली बात मैंने कहा edit.php, पहले मैं delete.php आपको सिखाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा डिलीट, जैसे ही वो डिलीट पे क्लिक करे, हाइपर रेफरेंस दिया हुआ मैंने, delete.php पे आ जाओ, ये तो बात ठीक है। लेकिन अगर मैं delete.php पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैं delete.php पे क्लिक करता हूँ वो कहेगा उसको, क्योंकि स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं मिला तो किसी भी डिलीट को दबा लो वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, ये तो मैं नहीं चाहता। मैंने कहा लूप चले, जब लूप चलती थी तो मेरे पास EID आता था, याद है ये रो में, पहली दफ़ा जब लूप चलेगा तो इधर 1 आएगा, दूसरी दफ़ा 2 3 4, इसका मतलब है कि इतने वेरिएबल में मेरे पास 1 आता है पहली दफ़ा, चौथी दफ़ा 4 आ रहा है, यानी उसका ID 4 आ रहा है। मैंने कहा एक फील्ड हो, मैं इसको EID ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपने हाइपरलिंक के साथ इसको भेजता हूँ, ये देखो डायनामिकली स्टैटिक पेज ऐसा कैसे भेजते हैं, यानी edit.php पे जाओ, ज़रा याद करना,
इंसर्ट डाटा काशिफ पासवर्ड दिस email kashif@gmail.com. I just press this, so you see कि किसी भी लिंक के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के मैं कोई भी डाटा भेज सकता हूँ, बिकॉज मेरी प्रोसेसिंग जो है वो किसके साथ हो रही है, मेरी प्रोसेसिंग गेट के साथ हो रही है। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क के आगे डाटा भेजा तो मैंने क्या भेजा, मैंने भेजा EID इज इक्वल टू $रो। अब रिकॉर्ड में पहली यानी जब पहली दफ़ा लूप चलेगा, देखो मैं कहता हूँ शो ऑल रिकॉर्ड, जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो देखो इसके लिंक में क्या आ रहा है, इसके साथ एम्प्लॉई ID 1 आ रहा है, इसके साथ एम्प्लॉई ID 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। देखिए आपने वो रेफरल लिंक्स में क्या होता है, उसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो साथ में उसने हिडर में ये भेजा होता है। ठीक हो गया, तो वो ऐसे ही जाता है। अब ये 4 इसको तो पाता हूँ, तो जब क्लिक करूंगा तो जाएगा किसके ऊपर, delete.php पे। लेकिन EMP-ID के अंदर ये EMP-ID अभी ले रहा है, एक मिनट रिफ्रेश नहीं हो रहा है, उधर EMP-ID लिखा हुआ है, ये ID लिखा हुआ है ना, ये ID है ना, तो वहाँ अब EID लिखा होना चाहिए। ये सेव किया एंड देन आई जस्ट गो फाइंड अगेन, ओपन किया, मैं आपके डेटाबेस पे आता हूँ और डेटाबेस में था शो डाटा डॉट PHP, मैं यहाँ गया हूँ 4 के ऊपर, देखो ये ID आ गया। ठीक, सही हो गया जी। अब जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो किस पेज पे जाऊंगा, delete.php, बिल्कुल। जब मैं इसको दबाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, delete.php पे। सो व्हाट आई डू नाउ, आई जस्ट गो एंड सेड कि अब मुझे कहाँ जाना है, delete.php पे। सो आई जस्ट व्यू यूर पेज कॉल्ड delete.php। जैसे मैं delete.php पे आया तो क्या हुआ, मैंने एक वैल्यू भेजी थी किस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में। मैंने कहा इस वेरिएबल से भेजी वैल्यू आप EMP_ID में ले लो। आपने इस वेरिएबल से भेजी वैल्यू किसके अंदर ले ली, EMP_ID में ले ली। मैंने उसी तरह सारा कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, उसी तरह मैंने डेटाबेस कनेक्ट किया, ठीक है, और उसी तरह मैंने क्यूरी चलाई, क्या, डिलीट फ्रॉम TBL एम्प्लॉई वेयर, अब मेरे पास क्या था, EID इज इक्वल टू भेजा गया ऊपर से आया हुआ एम्प्लॉई ID, ठीक, ये स्ट्रिंग में आ गया, क्यूरी यहाँ पास की, MySQL क्यूरी, कनेक्शन रन कर लिया, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, शो डाटा डॉट PHP क्लिक किया ताकि मैं देख सकूँ डाटा डिलीट हुआ है कि नहीं, और कनेक्शन को क्लोज कर। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली तो पूछ सकते हो, यहाँ तक क्लियर है जी। मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया और आपको रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि अभी delete.php दोबारा अपडेट होगा। मैंने यहाँ क्लिक किया 4, जस्ट क्लिक हियर, 4 पे क्लिक किया, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, शो ऑल एम्प्लॉई किया, देखो 4 नहीं आ रहा, मैं 8 वाला डिलीट करता हूँ, जस्ट क्लिक किया, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, शो ऑल एम्प्लॉई, देखो 8 वाला नहीं आ रहा। अच्छा कहीं यहाँ से भी खत्म हुआ है कि नहीं, so when I go there click on browse, so you will see यहाँ पे 4 और 8 नहीं आ रहा, ये डाटा डिलीट हो गया, रिकवर नहीं होगा। ठीक हो गया जी। ये होता है जब यूज़र ने अपना ईमेल एड्रेस से ख़त्म कर दिया, ठीक, या हमने ख़त्म कर दिया, एक ही बात है। अब जब यूज़र डिलीट की क्यूरी चलाएगा ना, तो ये मैं जेन में रखना है कि उसको डायरेक्ट नहीं ID देना, सिर्फ वो अपने ID के साथ काम कर सके, ईमेल से करेंगे, अपने ही ईमेल से, हाँ पर्सनल ID कर लो आपके अपने ईमेल से करें, ठीक, या कोई ऐसी यूनिकनेस वो उसको ना पता लगे, ताकि जब सिर्फ वो अपने वाले को डिलीट कर सके, एडिट कर सके। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर जी। ओके, ये हमने क्या कर लिया, डिलीट। अब अपडेट की तरफ आते हैं। अब जब मैं वापस आया शो डाटा डॉट PHP पे, तो यहाँ मैंने एक और फाइल थी जिसके ऊपर डाटा भेजा था, वो थी edit.php। अब एडिट की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो edit.php पे आया, सेम वर्किंग होगी। edit.php के ऊपर जब मैं आऊँगा तो मैं वही ID भेजूँगा, मैं यहाँ गेट करूँगा, ये मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, कनेक्शन से रिलेटेड मेरी वर्किंग होगी DB अहमद के साथ। सो मैं यहाँ पे DB AHMAD कर लेता हूँ और कुड नॉट सेलेक्ट डेटाबेस कर लिया। मैंने कहा सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम वेयर, मैंने यहाँ पे जाके EMP-ID सेम वैसे रहने देना, तो यहाँ पे ही आएगा, ठीक है, EID इज इक्वल टू EMP-ID, कनेक्शन रन किया, फैच किया। अब देखो ये डाटा तो मेरे पास आ गया जी,
ठीक है, यहाँ पे डाटा मेरे पास आ गया, जी लेकिन डाटा मेरे पास आ तो चुका है, लेकिन मैंने उसको क्या करना है, उसको एडिट करना है। तो यूज़र को दिखाना तो पड़ेगा ना कि किस डाटा को एडिट करना है। तो मैं क्या एडिट करना चाहता हूँ, सपोज मैं चाहता हूँ कि व्हेन यूज़र क्लिक ऑन दिस एडिट बटन, ये 5 के साथ कर रहा हूँ, तो इसका जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकूँ। ठीक है। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर एक रो ली, ये मैंने रो उठा ली। अब यहाँ वाइल लूप क्यों नहीं लगाया? कोई भी अगर डिफरेंट हो सकता है ये तो। नहीं, क्योंकि मैंने वेयर क्लॉज लाई है, और वेयर क्लॉज में एक ही आईडी वाला आएगा, बाकी आएंगे ही नहीं। ठीक है। नहीं, वेयर क्लास ई आईडी के ऊपर तो प्राइमरी की लगी हुई है, जी सर। एक आईडी के दो तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब है जब वेयर क्लॉज चलेगी तो एक ही रिकॉर्ड रिटर्न होगा, वो रिकॉर्ड मेरी आर ई सी अरे में आएगा। मैंने इस अरे को फैचर ए की शक्ल में गेट कर लिया, तो मेरे पास रो नाम की एक अरे आ गई। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हो। मैंने प्रिंट ऑन किया, डाटा फाउंड सक्सेसफुली, ये डिबगिंग का तरीका है। मैं अभी इसकी तरफ आता हूँ। आगे मैं गया, आगे जाकर मैं एरर करूँगा भी जान के, देखिएगा। मैं यहाँ गया, अब मैंने यूज़र को दिखाना है, तो मैंने देखो यहाँ तक चला, मैंने कहीं डाई नहीं किया। अगर मैं चाहता मैं पेज यहीं ख़त्म हो जाए, तो मैं यहाँ जाके लिख दूँगा डाई। इस तरह भी मैं इसको बंद कर सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ एग्जिट, मैं इस तरह भी ख़त्म कर सकता हूँ। डाई लिखने का चलता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मैसेज भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ फॉर्म लोडिंग स्टॉप, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि इसको ख़त्म नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको रहने दिया। इसमें ना थोड़ा सा वो जो कॉलेज वाले हैं ना, वो भी यहाँ पहुँच गया है माजिद जो था। ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा, उसके बाद जो वीडियो पड़ी है ना वो भी आपको ला दूँगा, वो भी आप एक दफ़ा अपने तौर पर देख लेना। ठीक है। ताकि कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लग रहा है कि मैंने वहाँ पहले आपको बता दी हुई हैं, जैसे वो PHP वो मैंने उसको करवा दिया हुआ है। ठीक। उसकी मैं वीडियो आपको ला के दिखा दूँगा, तो वो आप देख लेना घर में। सही है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो भी वर्किंग होगी वो देख लेंगे। ठीक है जी। जी। आगे चलते हैं जी। मैंने कह दिया ये। अच्छा, अब जब व्यू होगा तो क्या व्यू होगा? अब देखो मेरे पास डाटा आ चुका है किस वेरिएबल में, रो वेरिएबल में। ठीक है, अब मैंने यूज़र का क्या क्या दिखाना है। आईडी में मैंने चीज़ें हिडन रखी हैं। आईडी को मैंने हिडन क्यों रखा, क्योंकि नज़र ना आए। ठीक। लेकिन मुझे क्योंकि कंटेनर पर ये जेल में रखना है कि आईडी ही वो चीज़ है जिसके थ्रू मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने txt id ये नाम दिया उसका, और देखो उसमें मैंने क्या किया, इको मैंने डॉलर रो ई आई डी जो मेरे पास आ रहा था वो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ गेट कर लिया। अब वो ई आई डी किस में शो हो जाएगा, हिडन में, तो हिडन में तो नज़र आएगा ही नहीं। ठीक। नीचे क्या होगा, उसका पासवर्ड मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा। पासवर्ड मैंने कहाँ शो करवाया है, किस फील्ड में था, ई अंडर स्कोर पास के अंदर। ठीक है, पास। सपोज मैं गलत करता हूँ, ठीक। ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अब वो मुझे कह रहा है अपडेट करो। ठीक है, नीचे एक और फील्ड मैंने उसका ले लिया है, ईमेल वाला भी, तो मैं यहाँ पे सही लिख लेता हूँ, ई अंडर स्कोर ईमेल। ठीक है, यानी ईमेल भी मैं अपडेट कर सकता हूँ और पासवर्ड भी मैं अपडेट कर सकता हूँ। मैंने सेव किया, मैं क्यूरी चलाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। 5 को एडिट करने गया हूँ, एडिट डॉट PHP पे क्लिक किया, देखो यहाँ एरर आ गया। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या एरर है, वो दूसरी बात है मुझे पहले ही पता, मैं तो खुद एरर किया ना। ठीक है, लेकिन ईमेल एड्रेस सही आ गया। अब मैं अपना ऊपर जाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप मैं देखूँगा कनेक्ट हुआ है। अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो फिर ये नीचे कभी ना आता। ठीक है। इसका मतलब कनेक्ट हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि कनेक्ट होकर डाटा क्या आया, प्रिंट अंडरस्कोर आर रो मैंने लगाया इसी के ऊपर, तो कहता है एक रो आई है 0 इंडेक्स 5 वाला है, यही है। अथर्वन उसका नेम है, और पासवर्ड में उसका 1 2 3 पासवर्ड भी सही आ रहा है, और ईमेल एड्रेस भी सही आ रहा है, लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ तक डाटा ठीक आ रहा है। जब यहाँ तक डाटा ठीक आ रहा है तो नीचे भी उसको ठीक आना चाहिए। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके देखा कि इस फील्ड में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर कोई गलती की है। ठीक है, यानी सही कॉल नहीं किया। अगर आपका दिल ना माने कि आप कहते हो नहीं सर हमने तो बिल्कुल ठीक कॉल किया है, तो आप इसको करो कॉपी, बल्कि इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ से उठाओ जी। और यहाँ पर रख के देखो क्या ये सही आ रहा है। ठीक है। अब मैंने सेव किया, मैंने रन किया, जैसे मैंने रन किया वो 5 आ रहा है उसके अंदर। इसका मतलब है कि यहाँ तक भी बात ठीक है। ई अंडरस्कोर आई डी था, ई आई डी था, एरर किधर आ रहा है, पासवर्ड पे एरर आ रहा है, सॉरी। ठीक है, ई पास यहाँ तक, यानी ये ठीक है। अगर ये ठीक है, यानी अब मेरे पास ये ठीक है। अब मैं नीचे वाले को लेके आता हूँ, मैंने जाके उठा के इसको कॉपी किया। डिबगिंग टेक्निक है ना, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके देख रहा हूँ।
मैंने उसी जगह पेस्ट करके देखा, मैंने सेव किया। ओ यहाँ एरर है। क्या एरर है? अनडिफाइंड इंडेक्स ई अंडरस्कोर पास, इसका अनडिफाइंड इंडेक्स है। नाउ आई चेक दिस वन, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता था मैंने क्या मिस्टेक किया है, जिसको सेव रिफ्रेश, हाँ 1 2 3 पासवर्ड आया। अब ये 1 2 3 इस बॉक्स में चाहिए, तो इस का मतलब है कि ये यहाँ से कमेंट में आया और यहाँ जाके मैंने कह दिया पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ईमेल और मैंने कहा रो अंडर ई अंडरस्कोर ईमेल, वो तो ऑलरेडी सही आ रहा था। आई जस्ट सेट दिस, पहली रो में पासवर्ड सही आ गया, ये सही आ गया। अब अभी तक अपडेट की क्यूरी नहीं चलाई है। अब मैंने सिर्फ क्या किया है कि जो मेरे यूज़र एडिट करना था, ठीक है, सपोज ये, अब उसका पासवर्ड और ईमेल एड्रेस मैंने उठाए हैं, अभी सिर्फ मैंने उठाए हैं। देखो क्यूरी कौन सी लगी है, अगर आप देखो तो क्यूरी आपने सेलेक्ट की लाई है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी अभी तो आप डाटा गेट करके लाए हो। अब आप डाटा चेंज करोगे, यानी अब मेरा डाटा पहले रीड ओनली था, अब वो मेरा ओपन मोड में आ गया है। यहाँ तो नहीं चेंज कर सकते ना, यहाँ तो चेंज नहीं कर सकते ना। अब वो मेरे किस मोड में आ गया? ओपन मोड में आ गया। अब जब वो मेरे ओपन मोड में आ गया है, अब मुझे क्या करना है? जब मेरे ओपन मोड में आ गया तो अब मैंने कहा जब मैं बटन दबाऊँ btn सबमिट डाटा के नाम से, तो ये मैंने डाटा फॉर्म के थ्रू भेजना है एडिट एम्प्लॉय डॉट php के ऊपर। अब मैं कहाँ आ जाऊँगा? मैं आ जाऊँगा एडिट एम्प्लॉय डॉट php के ऊपर। अभी ये ज़हन में रहे कि यहाँ पर मैंने क्या क्या भेज रहा हूँ, txt eid जो कि हिडन फील्ड है, txt एम्प्लॉय पासवर्ड और txt एम्प्लॉय ईमेल, लेकिन एक्चुअली मैं भेजूंगा यही। ये तो वैल्यू गेट इसलिए करूंगा ताकि मैं उसको रिप्लेस कर सकूं। देखो कैसे, मैंने eid जो था ना txt emp, वो तो ऐसे ही आएगा, ये मैंने गेट कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास किस में आ गया? emp अंडरस्कोर id में आ गया। मैं ये आ गया, मैंने कहा emp अंडरस्कोर पासवर्ड इज इक्वल टू txt emp पास, ये मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स था उसमें से जो पासवर्ड लिखा हुआ वो यहाँ आ गया, जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ वो यहाँ आ गया। मैंने क्या किया? ये मैंने वही कनेक्शन किया दोबारा, कनेक्शन किया। अब क्यों? क्योंकि फिर मुझे डेटाबेस को प्योरीफाई करना है। क्या? अहमद, ठीक, मैंने कहा कुड नॉट सिलेक्ट डेटाबेस, ठीक। अब अपडेट की क्यूरी लगाई, अपडेट टीबीएल एम्प्लॉय सेट ईएमपी पासवर्ड, सो वी शुड एंटर बट ई अंडरस्कोर पासवर्ड पास इज इक्वल टू, अब जो इधर से पासवर्ड आया वो मैंने यहाँ सेट करा दिया, ठीक है, ई एम पी ई मेल, सो ई अंडरस्कोर ई मेल जो वहाँ से आया वो मैंने यहाँ सेट करा दिया, वेयर ई आई डी इज इक्वल टू ई एम पी आई डी, इस आई डी के अगेंस्ट। अगर तो मेरी क्यूरी सही चलती है, माई एस क्यू एल अंडरस्कोर क्यूरी, मैंने उसमें स्ट्रिंग क्यूरी वाला पास किया, तो अगर चलती है ठीक है, नहीं तो एरर आ जाए, एरर इन अपडेट, ठीक हो गया। मैंने कहा डाटा अपडेट सक्सेसफुली, कनेक्शन क्लोज पे आया, मैं बाहर आ गया। शो डाटा डॉट पीएचपी से जाकर देखा पासवर्ड चेंज हुआ है कि नहीं, कैसे देखते हैं। आई जस्ट गो रिवर्स फ्रेश, यूजर नेम है अथर1, आई डी दिस, आई जस्ट गो एडिट 1 2 3 को मैं कर देता हूँ 786 789 और इसको कर देते हैं ए अपडेट, ठीक है। अपडेट की क्यूरी चलाई, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेट की क्यूरी प्रॉपर्ली चल गई, शो वाले एम्प्लॉय पे गया तो मैंने देखा कि पासवर्ड भी चेंज हो चुका है और उसका ईमेल एड्रेस भी चेंज हो चुका है। अब याद रखो आप ये भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं चेंज कर सकते, आईडी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि आईडी हमारी प्राइमरी की है और इसके ऊपर तो हमारी प्रोसेसिंग होती है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर? यानी एडिट भी मैंने आपको बता दिया, डिलीट भी बता दिया। आई जस्ट गो होम, होम की बजाय मैंने कहा है यहाँ, ठीक है जी। तो मैंने क्या आज आपको सिखा दिया, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ना मैं यहाँ जाता हूँ, ये हमने चारों मोस्टली बस 4 चीज़ें ही मेन है जो हम डील करते हैं, लेकिन जब आप अपने फॉर्म के साथ ये चीज़ें भेजोगे ना, इतने आराम से नहीं होगा जितने आराम से मैंने कर लिया। ठीक है, आपको कोई वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे, प्रॉपर उसकी डाटा भेजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपकी क्या क्या वैल्यूज़ है। ठीक, हमारे टीबीएल एम्प्लॉय में डाटा आ भी चुका है और हमने डाटा देख लिया कि हमारे पास कौन कौन सी वर्किंग जो है वो इंसर्ट हो रही है, डिलीट हो रही है, अपडेट हो रही है, मॉडिफाइड हो रही है, जो भी हमने करनी थी हमने यहाँ पे देख ली। अब आपका काम क्या है? आपने एक तो यही काम करना है जो मैंने आपको करने के लिए कहा है, ठीक हो गया। एक तो हमारी यही वर्किंग है। दूसरा आपने ये करना है कि मैंने बनाया एडमिन पैनल, यानी जिसको सब कुछ नज़र आता है। आपने बनाना है यूज़र पैनल, जिसको सिर्फ अपने आप नज़र आएगा, यानी जो यूज़र नेम पासवर्ड देके लॉगिन करेगा और आगे वहाँ से अपनी प्रोसीजर चलाएगा। हो जाएगा, आसान है, सिंपल वेयर की क्लॉज नहीं पूरी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक, याद है? क्लियर जी। अच्छा, अब ये टॉपिक हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक हो गया।
जी। इसको हम करते हैं मिनिमाइज, मिनिमाइज में करते हैं इसको खोलते और इन सबको मैं बंद कर देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा मैंने क्या किया। रिकॉर्डिंग का पार्ट